اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جگہ میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداً دعوت اسلامی کی اہم مدنی خبروں کی جھلکیاں۔ مرحبا صد مرحبا پھر آ گیا رمضان ہے، کھل اٹھے مرجائے دل تازہ ہوا ایمان ہے۔ 30 روزہ اعتکاف کے مناظر۔ آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے۔ پاکستانی ٹیسٹ کرکٹر اظہر علی اتاری کی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ حاضری۔ آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے۔ رکن شورا حاجی محمد علی اتاری کی بنگلہ دیش میں نیکی کی دعوت۔ آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے۔ میر پور کشمیر میں شخصیات کے درمیان افطار اجتماع کا سلسلہ۔ آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے۔ رکن شورا محمد رفیع اتاری کی عرب امارات میں دوران سفر مدنی کاموں کے مناظر۔ مرحبا صد مرحبا پھر آ گیا رمضان ہے، کھل اٹھے مرجائے دل تازہ ہوا ایمان ہے۔ اور اب دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کی تفصیل۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں 30 دن کے اعتکاف کا سلسلہ جاری ہے۔ بعد نماز ظہر مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہوا، جس میں شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری روضوی ضیائی دعوت برکاتہم العالیہ نے اسلامی بھائیوں کو مدنی پھولوں سے بھی نوازا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو اپنے ارد گرد محسوس کرتا ہوں۔ میری ہر محفل آپ کی محفل ہے اور آپ کی تعلیم و تبلیغ اور آپ کی روحانیت کا فیضان ہے۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ اور آپ سے بھی میرے حالات مخفی نہیں ہیں، آپ سے دعا چاہتا ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ بخش دے اور آخری میرا اچھا ہو، بلکہ اب اچھا ہی اچھا ہو۔ وہی بات میں کہتا ہوں آپ کہتے ہیں تو اثر میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ اس سوال نہیں ہے، بلکہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے ذریعے لوگوں تک بات پہنچ جائے کہ رمضان شریف میں جو تراویح ہے اس میں 5 روزہ تراویح، 10 روزہ، 3 روزہ تک تراویح لوگ پڑھ کر نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ ختم قرآن ہوتا ہے یا تراویح ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اور دوسری بات جو ہماری معاشرتی خرابیوں میں اس وقت جو ہمارا وقت کا ٹائم کرپشن ایک بہت بڑا ہو رہا ہے کہ مختلف کمپنیوں نے موبائل فون رات سستے پیکیجز کر دیے ہیں، تو ہماری نسلیں جو ہیں ان کا وقت ہی ضائع ہو رہا ہے۔ اتنا نقصان ہوگا، لوگوں کو مخلص رشتے نہیں ملیں گے۔ جب میری ایک گلی میں میرا ایک بیٹا جاگ رہا ہے تو دوسری گلی میں میری بیٹی بھی جاگ رہی ہو۔ اس موبائل کے فون نے اخلاص اور سادگی اور سچائی چھین لی ہے اور چھین لیں گے، اور اس کے بعد جب رشتے ہوں گے تو روئیں گے اور آنسو بھی نہیں نکلیں گے۔ شکوک و شبہات کے بستر پہ انگاروں کے بستر ان کو ملیں گے۔ اپنی زبان اثر پذیر سے ذرا تاکید کر دیجئے موبائل کا فون غلط استعمال نہ کریں۔ یہ نہ دیکھیں کہ ہمیں مفت موقع مل رہا ہے۔ آپ بتائیے، میں تو چاہتا ہوں جو کمپنیاں ہم سے اتنی ہمدردی کر رہی ہیں، ہمارے بے روزگاری بہت ہے، وہ ساری رات کی کالز فری نہ دیں، ایک 4 گھنٹے کی ملازمت دے دیں۔ ہمارے نوجوانوں کو اپنے دفاتر میں ایک پارٹ ٹائم جاب دے دیں، تو یہ فری ٹائم میں کہاں بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ پس دراز فرمائے۔ بڑی خوشی ہے کن گلیوں میں سفر شروع کیا تھا، خون مسجد، شہید مسجد، گزارے حبیب، اللہ اکبر۔ آج شمال و جنوب جاتا ہوں، مسجد تلاش کرتا ہوں تو مجھے فیض عطار مسجد ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ ماشاءاللہ سید صاحب کے جذبات مرحبا، میرے بہت پرانے کرم فرمائے، دعوت اسلامی سے پہلے کے بہت بھلے جذبات ہیں ان کے، ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے۔ اور انہوں نے جو درد بتایا وہ درد میں نے پہلا مولانا دیکھا جس کو اتنا درد ہے موبائل کے تعلق سے۔ ہوتا ہے درد تو، لیکن ہمارے سامنے ابھر کر یہ آئے۔ ان کے درد کی نمائندگی
हम वर्षों से कर रहे हैं। मैंने तो यहाँ तक बद्दुआएं दी है कि अल्लाह करे कि वो मोबाइल महंगा हो जाए, कि किसी तरह जान छूटे कौम की, कौम तबाह हो रही है। ये तो अगर वक्त का ज़िया कह रहे हैं, मुझे तो ईमान का ज़िया नजर आ रहा है। कुफरियात SMS कर रहे हैं, मौजू रिवायतें, मनगढ़ंत रिवायतें, मनगढ़ंत मसाइल, जो समझ में आता है वो तरकीब बनाकर दा जाने को गैर मुस्लिम इनको भेजते हैं, और ये जहालत की वजह से ये आगे बढ़ा देते हैं। क्या करते हैं कुछ समझ नहीं आती। मोबाइल फोन के जरिए ईमान का खतरा खड़ा हो गया, अब भी नहीं समझते। अब रहा यह कि तरावी के लिए 3 रोजा 5 रोजा, इस पर भी मैं बहुत ज्यादा अर्ज कर चुका हूँ। ये तो कह रहे हैं कि खत्म कुरान हो जाता, मुझे तो इससे भी इत्तेफाक कम ही है। तो यालमुना तालमुना से बढ़कर कुछ समझ नहीं आती, इतना स्पीड से आमतौर पर पढ़ा जाता है। ये तरावी भी नहीं होती, रस्म तरावी होती है। अगर खत्मुल कुरान हो भी गया तो वाकई ये इन्होंने अच्छा मतलब जुमला बोला कि खत्म तरावी नहीं हुआ। तरावी खत्म नहीं हुई, तरावी तो सारा महीना सुन्नतुल मुक्कदा। अगर खत्म कर भी लिया 3, 5, 6 दिन में, फिर भी तरावी जारी रखनी होगी रमजान की आखिरी रात तक। बाद नमाज असर मुनाजात इफ्तार का भी सिलसिला हुआ। जब इस तरह का माहौल मिले जहाँ आशिकाने रसूल हो, जुम्मा हो, असर की नमाज, वो भी गुरूब आफ्ताब का वक्त, फिर इफ्तार का वक्त, मस्जिद की हाजिरी, रोजे की हालत, रमजान की बरकत, इतनी कबूलियत दुआ का मतलब कि वो असबाब हो, तो ऐसे में तो बस टूट पड़ेगा, या अल्लाह हाथ तो बख्श दे। बेसबब बख्श देना, पूछ अमल नाम गफ्फार है तेरा या रब। जबकि बाद नमाज मगरिब सिलसिला जन्नत की तैयारी में निगरान शुरा हजरत मौलाना हाजी मोहम्मद इमरान अत्तारी मुबदिल आली ने सुन्नत भरा बयान फरमाया, और खुश नसीब इस्लामी भाइयों ने शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातहुमुल आलिया के हमरा खाना खाने की सआदत हासिल की। जो गलती पर होते हुए झगड़ा छोड़ दे, उसके लिए जन्नत के किनारे पर एक घर बनाया जाएगा, और जो हक पर होते हुए झगड़ा छोड़ देगा, उसके लिए जन्नत के वस्त में एक घर बनाया जाएगा, और जिसका अखलाक अच्छा होगा उसके लिए जन्नत के आला मकाम में एक घर बनाया जाएगा। ये बहस और झगड़ा करने से जो है ना, बहुत ज्यादा आपस में लड़ाई झगड़े और इख्तलाफात पैदा होते हैं। बहस इस तरह फजूल किस्म के इख्तलाफात का रूप धारती है। आपने देखा होगा कि बाद लोग कहते हैं यार आराम से बात करो, इतनी चीखने की क्या जरूरत है। तो यार इसको समझो ना, ये क्यों इतना मतलब कि यार हर बात पे तनकीद, हर बात पे तनकीद, हर बात पे बहस, हर बात पे तकरार। तो अगला बोलता नहीं तुम बात कहाँ सही कर रहे हो भाई, अब ये थोड़ी देर पहले तो बड़े सुकून और आराम से बैठे हुए थे। इनके अंदर एक इश्तियाल पैदा होता है, गर्म होता है, और जनाब वो थोड़ी देर के बाद उठकर दस्तो गिरेबान करते हैं। इस झगड़े की बहुत सारी वजूहात में से बुनियादी वजह इस चीज पर बहस, उस चीज पर बहस। यानी मैं जो कहता हूं ना, मैं सही कहता हूं। अच्छा, कभी आपने खामोश आदमी का कोई मुखालिफ देखा है? कभी आपने नहीं देखा होगा। और बाज लोग ऐसे होते हैं जब ये दावतों से जाते हैं ना, तो लोग कहते हैं कि यार मैंने मना कहते ना इसको मत बुलाना, तूने बुलाया ना इसको, देख क्या हुआ, दावत खराब कर दी ना इसने। इस तरह बहस ही करना, तकरार करना, इससे घर का माहौल भी बड़ा डिस्टर्ब होता है। रमज़ान की बरकतों से आबाद मस्जिदें हैं, हर कोई शौक से अब मस्जिद में आ रहा है। पेशे नज़र क़ब्र का पुल हो मगर फिर भी ये गफलत नहीं जाती। नमाज तरावी के बाद होने वाले मदनी मुज़ाकरे में 30 रोजा मुअतकिफीन, आशिकाने रसूल व दीगर इस्लामी भाइयों ने शिरकत की सआदत हासिल की। मुख्तलिफ खानों की खुशबुएं होती हैं, इनके सूंघने से रोजा टूट जाता है। खाने की खुशबुएं आने या सूंघने से रोजा नहीं जाता। अमूमन मैंने देखा गया है कि लोग कटाकट वगैरह जो जानवर के अंदर के अज़्ज़ा होते हैं, तिल्ली गुर्दे वगैरह, वो बड़े शौक से खाते हैं। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? नेक ख्याल है, तिल्ली भी हलाल है, गुर्दा भी हलाल है, मगर वो आपने नाम नहीं लिया जो मकरूह तेरी में है। नाम लिया भी अगर मसाला कैसे पता चलेगा? कटाकट का वो भी एक जूस है, हिस्सा है।
अपने पटनी भाई हैं तो शायद या तो मोहतात हो गए या खुद भूल गए। एक उज्व ये बड़े शौक से खाया जाता है, कपूरा। तो कपूरा खाना मकरूह तहरीमी है। उदयपुर वालों, मेरे आला हज़रत के हिंद के उदयपुर वाले आ गए, सुभान अल्लाह। जी बाबा खुश हो गए, इनके चेहरे बता रहे हैं कि आपका हाथ देख लिया। अब तो ये लगता है कि वैसे काफिले मदनी काफिले देंगे मेरे को, इंशाअल्लाह मदीना मदीना हो जाएगा। बाबा एक तरफ शहदादपुर है, दूसरी तरफ मरकजुल औलिया है, माशाअल्लाह। दोनों शहर आज दोनों के यहाँ जो भी मैंने पहुंची हुई है। मरकजुल औलिया और शहदादपुर, माशाअल्लाह आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। शहदादपुर वालों को भले करे आया, मेरे पंजाब के शेरों को जी आया नू। बाबा ढाका भी आ गया है, माशाअल्लाह। बालो अच्छे, बालो अच्छे, माशाअल्लाह। हाजी मोहम्मद अली भी है, बालो अच्छे। रियान भी है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। लॉडियम प्रिटोरिया। अब्दुल हबीब भाई आप भी वही हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बाबा आपने माशाल्लाह हमें अपनी निगाहों में रखी है। प्रिटोरिया साउथ अफ्रीका में काफी इस्लामी भाई इस पर जमा है और मदनी मुज़ाकरा देख रहे हैं। आपने माशाल्लाह भी हमें दाढ़ी शरीफ की नियतों से, इमामत की नियतों के बारे में इरशाद फरमाया। काफी इस्लामी भाई ने नियत की है, आप उठा कर इज़हार कर दे कि इंशाल्लाह दाढ़ी रखेंगे, इमामत सजाएंगे। अगर सफर निगाह करम फरमा दें, सबके लिए दुआ कर दें जो यहाँ नियतें कर रहे हैं। बाबा इनके हाथ उठे रहे, आप ताकि बाबा इंशाल्लाह आप सबको देख लें। और बाबा यहाँ पर काफिले के लिए आपने फरमाया है, बाकी लोगों ने तो अभी चांद रात की नियत की है। इंशाल्लाह प्रिटोरिया से अभी आपके मुज़ाकरे के बाद हाथों हाथ उन काफिले में रवाना हो रहे हैं इंशाअल्लाह। और इंशाल्लाह ईद के बाद साउथ अफ्रीका से अमेरिका और यूके मदनी काफिला भी रवाना होगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला। बाबा अल्हम्दुलिल्लाह आलमी मदनी मरकज फैज़ान मदीना में 383 इस्लामी भाइयों ने अखराजात चांद रात से मदनी काफिले में सफर करने की नियत से जमा करवा दी हैं। 30 दिन के एहतिकाफ के लिए 712 इस्लामी भाई हैं। मरकजुल औलिया लाहौर से शवाल में 26 इस्लामी भाई बैरून मुल्क मदनी काफिले पर जाने के लिए तैयार हैं। 403 इस्लामी भाई चांद रात। आज हाथों हाथ 112 इस्लामी भाइयों ने इमामा शरीफ सजाया। कादरी काबीना में 30 दिन के कमोबेश 160 इस्लामी भाई मोतकिफ हैं माशाअल्लाह। उन 160 इस्लामी भाइयों ने बापा, उनमें से 55 इस्लामी भाइयों ने कमोबेश इमाम शरीफ सजा लिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 63 दिन के तरबियती कोर्स के लिए 41 इस्लामी भाई देंगे इंशाअल्लाह। नील सिलसिला फैजान सहरी के दौरान निगरान शूरा ने इस्लामी भाइयों को मदनी फूल इरशाद फरमाए। जब इंसान को अपने वक्त की कदर ही ना रही तो इसके साथ वो और कई चीजों की कदर खो बैठता है। जो वक्त है ना, ये इंसान का सरमाया कैपिटल है, रासुल माल है। तज़ीए माल की तो मुमानअत आई है ना, और जो तज़ीए माल है वो इसराफ की तरफ जाएगा और इसराफ हराम है। अव्वल तो जो चीज हमारे वक्त को फी ज़माना बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रही है, जाया करने का सबब बन रही है, वो है बेजा टेलीफोन का इस्तेमाल। सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस वक्त है ना, हमारे वक्त की कदर नहीं है। इस वक्त आपको बहुत सारे लोग इधर मिलेंगे उधर मिलेंगे, फजूल किस्म की तफरियात में भी होते हैं। अगर किसी ने वाकई को नुमाया जिंदगी में इस काम अंजाम देना है, वो अपने आप को शेड्यूलिंग में लेगा। हम वुजू करते हैं जी, अब वुजू करते हैं तो चुल्लू में पानी लेना है, ठीक है ना। अब चुल्लू में पानी लेना है तो आप चुल्लू में पानी देते कितना पानी गिरता है, सही, ठीक है, ये जिया हो रहा है ना पानी। ये देखता ही कोई नहीं है। वजू खाने में बैठे हुए, नलका खोल के बैठ गए आराम से, हाँ भाई क्या हाल है, ठीक हो लेट हो गए आज, अरे खुद बंदे पानी जा रहा है, लेट हो गए, पानी जा रहा है इधर, ठीक है। उसको बोलो कि मतलब कि 50 रुपए का बोतल मिनरल वाटर, और उसको जो उल्टा कर दे और फिर आपसे बात करे, कभी सांस निकल जाएगी इसकी, कभी भी नहीं करे, बल्कि जवाब भी नहीं देगा, बोला मेरे पानी गिर रहा है मेरा। 30 रोजा मोतकिफीन आशिकान रसूल व दीगर इस्लामी भाइयों ने शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया के हमरा सहरी की सआदत हासिल की। जबकि इस मौके पर पाकिस्तानी टेस्ट क्रिकेटर अजहर अली अत्तारी की भी अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया की बारगाह में हाजिरी का सिलसिला हुआ। फैज़ान
अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अत'अमना वसक़ाना वजअलना मुस्लिमीन अल्लाहुम्मा अत'इम मन अत'अमनी वस्क़ि मन सक़ानी। ज़ईफ़ आदमी बेचारा खैर खैर इंशाअल्लाह। पापा आज जिस तरह हमने देखा कि ये बुजुर्ग थे सफ़ेद दाढ़ी वाले और आप माशाल्लाह इनकी तरफ खुद चल कर गए और फिर फरमाया भी कि बुजुर्गों का सफ़ेद दाढ़ी वालों का सफ़ेद बालों वालों का इकराम करना चाहिए। ये बेचारे बीमार, तरह तरह के खानदानी घरेलू टेंशन, घर वाले भी इनको नो लिफ्ट करते हैं। अगरचे इसमें इनका भी कुछ गुस्से का हिसाब किताब होता है, इस वजह से घर वाले इनसे नाराज होते हैं। इनको भी गुस्सा नहीं करना चाहिए, लेकिन घर वालों को चाहिए कि इनकी उम्र का ख्याल रखें, क्योंकि बच्चा और बूढ़ा एक ही होता है आमतौर पर। तो जिस तरह बच्चों की शरारतें या बच्चों की जो मसाइल होते हैं बर्दाश्त करते हैं, इनको भी बर्दाश्त करें। इन्होंने बहुत खिदमत की होती है अपनी जवानी में, उधेड़ उम्र में कमा कर खिलाया होता है, पिलाया होता है। अब इनकी बारी है कि आप इनकी खिदमत करें। बड़े नादान हैं वो लोग जो अपने बूढ़े माँ बाप को ओल्ड हाउस में डाला थे। माअज़ल्लाह, माँ बाप ने अब एक खिदमत का मौका आया तो ओल्ड हाउस में डाल दिया इनको, हालांकि अब तो जन्नत कमाने का मौका है। तो हम अभी से पूछें, हमारे यहाँ बूढ़ों की अल्हम्दुलिल्लाह पजीर आई है, जब भी इतने बूढ़े आकर एतिकाफ करते हैं, वरना तो कहाँ ये एतिकाफ करते अगर इनको मोहब्बत ना मिलती तो। और उन्होंने हर साल बढ़ते जा रहे हैं बूढ़े, ना काफी है। सहरी के बाद पढ़े जाने वाले कलाम में पाकिस्तानी टेस्ट क्रिकेटर अजहर अली अत्तारी और दीगर इस्लामी भाइयों ने शिरकत की। सख्तियों से मुझे बचा लेना, रखना रहमत की तू नजर रखना रहमत की तू नजर या रब। फैज़ान मदीना है, फैज़ान मदीना है। ईमान की हिफाजत के लिए इंशाअल्लाह दुआ करने और अपना मरीजों में शामिल कर लें। मसलक का तो इमाम है यास क़ादिरी, तदबीर तेरी ताम इलियास क़ादिरी, तदबीर तेरी ताम है इलियास क़ादिरी। मुबल्लिग़ दावत इस्लामी व रुकन शुरा अबू रजा हाजी मोहम्मद अली अत्तारी मुबव्विनुल आली ने बांग्लादेश ढाका मीरपुर की मकामी मार्केट में इलाकाई दौरा बराए नेकी की दावत में शिरकत की और ताजिर इस्लामी भाइयों को नेकी की दावत पेश की। आइए मुलाहिजा करते हैं। दावत इस्लामी की सारे जहां में मच जाएगी धूम, सारे जहां में मच जाए धूम। इस पे फिदा हो बच्चा बच्चा, इस पे फिदा हो बच्चा बच्चा। या अल्लाह मेरी झोली भर दे।
मुबल्लिग दावत इस्लामी व रुकन शूरा अबू बिलाल मोहम्मद रफी अत्तारी मुद्दल आली सुन्नतों की खिदमत के अजीम जज्बे के तहत अरब अमारात में सफर पर है। आइए दौरान सफर रुकन शूरा के मदनी कामों के मनाजिर मुलाहिजा करते हैं। من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع। आपने आज की दावत इस्लामी की मदनी खबरें मुलाहिजा फरमाई। मजीद खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। मदनी चैनल देखते रहिए। मस्जिद भरो तहरीक जारी रहेगी, गीबत के खिलाफ जंग जारी रहेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अल्लाह करम ऐसा करे तुझ पे जगह में ऐ दावत इस्लामी तेरी धूम मची हो, ऐ दावत इस्लामी तेरी धूम मची हो।